डे 3 कंपोस्ट मेकिंग के बारे में शुभा जी आगे हमें बताएंगे। यस मैम, थैंक यू। Yeah. So my apologies. So we'll start today with day 3. There's not much today. We'll just tell you how to continue adding to the bin. And there is a small thing called the accelerator, which is needed to increase the microbial load in your bin so that the composting process can be a little faster. So I will show you a small video that depicts how you can prepare the accelerator. Okay, you can see it. Yes, 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 yes. I'm going to show you the second part of it. So you've already started composting, and I hope you're enjoying this process. And today I'm going to show you the second part of it. Every day you're going to add to the bin, and I'm just going to show you that part of it. Alright? So you would have collected all your greens from your kitchen, from your puja room, from all the lovely delicious fruits you eat, and you keep it ready. Of course, I don't keep it on a tray, and if I do that, my family is going to object. What I do is I keep it in a box in my kitchen. Of course, the bigger pieces, I try to shred it, make it smaller pieces, and add it. Some of the pieces, of course, I'm not going to bother to cut this down. This is going to compost very fast. So I'm just going to add it and keep it in my box. And this is what I do at the end of the day, every day. And please note this point very, very carefully. I always keep my bin closed. This is very important so that you won't have fruit flies going in. You saw that luscious papaya, right? The fruit flies are going to go for it and they're going to lay eggs there. And you want to prevent that, so keep it closed. And then at the end of the day, or whenever it is comfortable for you, I'm just going to take it. And this is my composting bin. And remember the rule? What is the rule? 1 green, 2 browns, right? So I'm adding 1 green, 1, 2 browns. And again, 1 more handful. That's it. 1, 2. But there's just a small thing here. I've added fruits, and that too papaya. Remember what Bharti told you? Whenever you add papaya, watermelon, cucumber peels, or anything that's going to cause a lot of water in a compost bin, be sure to add an extra handful. So I'm adding this extra for that papaya. Alright? And if you're a little doubtful, you can add a little bit more. That's it. And then again, remember this very important point, I keep my bin closed. And this is because I don't want any fruit flies going in and laying eggs. Alright? That's it. Thank you. I hope you enjoy composting. Shubhaji, you can play it again so that I can translate. Yes, of course. So you've already started composting. Yeah. So आज जो हम लोगों ने कल हमने तैयारी की थी, उसके बाद ही अभी दूसरे दिन की बात है कि हमने अभी कंपोस्टिंग शुरू कर दिया है। अब कंपोस्टिंग के बाद अब हम क्या करने वाले हैं, हमें पता है हमारे ग्रीन्स क्या हैं, ब्राउन्स क्या हैं, और अभी रोजमर्रे का जो जमा हुआ है, सब्जियां, पूजा के फूल, फल जो हमने खाए हैं, वो सब है हमारे पास। तो ये बता रहे हैं कि हम इसको खुला प्लेट में नहीं रखते, मैं इसको ऐसे डब्बे में, बंद डब्बे में रखते हैं। देखिए इसमें कोई छेद नहीं है जिस डब्बे में वो रख रही हैं, तो ये बंद डब्बे में रखते हैं, जिससे कि जो अगर बड़े पत्ते हैं या कुछ, उसको छोटे टुकड़े करके रखना है। जैसे केले के छिलके या कुछ हैं तो वो तो खैर वैसे ही पिघल जाएंगे, तो उसके लिए चिंता की कोई बात नहीं है, तो उसको डाल देंगे। तो ये डाल के उन्होंने पहले से तैयार करके रखा है, सारा दिन का उन्होंने पहले इसमें जमा कर लिया है एक बंद डब्बे में, जिससे कि फ्रूट फ्लाइज ना आए। वो छोटे छोटे कीड़े होते हैं जो फलों में, अगर फल खराब होने लगते हैं तो आते हैं, या अच्छे फल में भी आ जाते हैं, तो फिर वो अंडे भी देते हैं, तो वो हमें नहीं चाहिए, इसलिए इसको हम बंद ही रखेंगे। इस चीज का हमें ध्यान रखना है। सारे दिन का हमने इसमें जमा कर लिया।
अब जमा कर लेने के बाद नेक्स्ट हमारा स्टेप क्या है कि हम इसको अब कंपोस्ट बिन में डालने वाले हैं, जो कि हम कल शुरू कर चुके हैं। तो अब इसका हमने क्या किया, वही ढक्कन खोला और जैसा हम लोगों ने कल देखा था कि हर मुट्ठी के साथ, हर ग्रीन के एक मुट्ठी के साथ ब्राउन के 2 मुट्ठी हमें डालने हैं। तो ये 1 मुट्ठी उन्होंने डाला और अब 2 मुट्ठी उन्होंने ब्राउन डाल दिया, फिर एक और मुट्ठी उन्होंने डाला और फिर से 2 मुट्ठी और ब्राउन, अभी सूखे पत्ते हैं तो वो डाल दिया। अब उन्होंने एक बात याद दिलाई कि देखिए हम लोगों ने इसमें पपीता डाला है। अब जैसे पपीता है या तरबूज है या हमारा खरबूज हो गया या हमारा खीरा हो गया, ये पानी छोड़ने वाली सब्जियां और फल हैं, तो इनमें हमें एक्स्ट्रा 1 मुट्ठी और ब्राउन डालना पड़ेगा। तो उसको याद दिलाने के लिए वो अब देखिए 1 मुट्ठी और ब्राउन डाल रहे हैं। और अगर आपको थोड़ा लगता है कि शायद अगर कम ना हो जाए तो भले आप थोड़ा सा और ब्राउन डाल सकते हैं। डालने के बाद फिर से वही हमें याद रखना है कि इसको हमें ढक देना है, क्योंकि हमें इसके ऊपर कोई भी कीटाणु या कोई भी फ्रूट फ्लाइज या कुछ भी उड़ने वाले जो हैं कीट पतंग हमें नहीं चाहिए, तो इसे हमने बंद कर दिया। तो ये था हमारा आज का नेक्स्ट स्टेप जिसमें हम प्रोसीड किया हमने। Shubha ji, you are mute. Yes, now you can speak. Yes, you are audible now. Okay. So just a reminder that before she closed the bin, if you notice, the last layer was browns. So it's always good to have a top layer of browns, because then the smell of the vegetable peels will not come through and attract the insects. We do have holes over there, so always good to cover with a layer of brown so that the smell doesn't come through, and it will protect from the moisture also. ये चीज हमें ध्यान रखनी है कि आपने देखा कि लास्ट में ब्राउन डाला गया, तो जो लास्ट कवर वाला है वो हमारा ब्राउन ही हो। इससे 2 फायदे होंगे। एक तो जो ब्राउन है वो कवर कर देगा हमारे जो भी फल सब्जियां हैं उसको, पानी एक्स्ट्रा सोख लेगा। दूसरा जो फल सब्जियां हैं उनकी जो स्मेल आएगी, अगर वो जैसे डिके होंगे तो उनका जो स्मेल है वो कीड़े मकोड़ों को अट्रैक्ट नहीं करेंगे, इसीलिए ऊपर हमारा ब्राउन भी रहेगा। आपको याद होगा कि कल जब राव साहब दिखा रहे थे तो उन्होंने भी यही लेयर्स दिखाया था, ब्राउन और फिर हमारे ग्रीन ब्राउन का लेयर, तो ऊपर हमारा ब्राउन रहेगा। तो ये चीज जब भी हम एक दिन का खत्म करें तो ऊपर हमारा ब्राउन का लेयर रहे, ये हमें ध्यान रखना है। Yeah, so I'll share the second video. Hello everyone. Today we will learn how to make. Hello everyone. Today we will learn how to make an accelerator. An accelerator, as the name suggests, has the same function as that in your automobiles. It accelerates or speeds up the decomposition process that's going on in your compost bin. Now, how do you make this accelerator? Take a vessel that has earlier contained some curds or buttermilk and add a little bit of water, mix it and then keep it aside. In a day or two, this will ferment further and develop a lot of lactobacillus bacteria, which when added to the compost bin will speed up the decomposition process. Now, you can also use cow dung slurry. So take a little bit of cow dung slurry, again, add some water, mix it and keep it aside. Just make sure you don't keep this in the refrigerator, because the microorganisms need to develop and they will not do so inside in a cold environment. So keep them outside. In a day or two, all the bacteria would have multiplied, and you can just take a little bit of it, sprinkle it onto the compost bin, and the acceleration process will happen. You do this once a week. Thank you. So here, Shubha ji, I have a question. The cow dung you said is a dried one or what? Yeah, I have used a dried one because it's easier to find, but the wet one is also good. The wet one will obviously have more microbes, but the dry one will cultivate the microbes. Okay.
Hello या everyone. तो ये आज हम लोग एक्सेलरेटर के बारे में सुनेंगे, जानेंगे। तो एक्सेलरेटर क्या होता है कि जैसे हम लोग गाड़ी में स्पीड बढ़ाते हैं, एक्सेलरेट करते हैं, बिल्कुल ऐसा ही हम हमारी जो ये कंपोस्ट बनने की जो प्रक्रिया है, इसको हम तेजी करने के लिए, एक्सेलरेट स्पीड अप करने के लिए हम एक्सेलरेटर बनाने वाले हैं। और इसके लिए क्या करना है, हमें कोई ऐसा बर्तन लेना है जिसमें हमने थोड़ा अगर दही रखा है, थोड़ी सी दही देख सकते हैं आप, बहुत ही कम है, उसमें हमें थोड़ा पानी मिला देना है। छाछ भी हो सकता है, वो भी चलेगा, उसमें पानी मिला के हमें रख देना है 2 दिन के लिए। या आप वो भी ले सकते हैं, गोबर भी ले सकते हैं, ताजा या पुराना भी चलेगा, उसमें भी आप पानी डाल के रख सकते हैं। You can also use cow dung slurry. So take a little bit of cow dung ये slurry. दिखा रहे हैं कि उसमें आप डाल सकते हैं। जो ये बटर मिल्क का था, उसमें जब हमने पानी डाला, ये जो दही छाछ या दही का पार्ट था, उसमें पानी डालने से उसका जो लैक्टोबैसिलस जो है वो बढ़ जाता है। और इसी तरह से गोबर में भी अगर आपने रखा है, गोबर या सूखा हुआ गोबर में अगर आपने पानी डाल के रखा है, तो ये माइक्रोब्स जो है वो बढ़ जाती हैं। अब इनको अगर हमने जैसे डाला कल, जैसे वो आपने देखा राव साहब जो है वो एक लिक्विड डाल रहे थे बोतल से, ये वही एक्सेलरेटर का काम है। तो अगर हम इसका छिड़काव कर देते हैं तो हमारा जो मैन्योर बनने का, जो कंपोस्ट बनने का जो प्रोसेस है वो तेज हो जाता है, जल्दी होने लगता है। So that's it. Yeah. So those were the 2 videos, and the accelerator, there are a lot of microorganisms in the air, and when you expose some starch material, they will attract and get into the material and start multiplying. And so we'll have a nice bunch of microorganisms which will play a very active role inside the bin. जैसे हम देखते हैं कि जो हमारी फल वगैरह होती हैं उनमें कार्बोहाइड्रेट वगैरह भी होता है। तो जब हम ये एक्सेलरेटर माइक्रोब्स के साथ हम जब डालते हैं तो वो उसको और अच्छे से तोड़ने लगता है और बड़ी तेजी से वो हमारा कंपोस्ट बनने की प्रक्रिया जो है वो बढ़ जाती है और अच्छे से काम करने लगता है। यहाँ पे हम ये बगीचा पीछे देख सकते हैं, कितना सुंदर हरा भरा है सारे पौधे। So that was today's topics. शुभा जी, आपसे एक क्वेश्चन था मेरा। हाँ. ये जो हम रोज प्रोसेस करते हैं उसमें कितनी देर लगती है, हमें कितना टाइम हमें इसमें इन्वेस्ट करना पड़ता है? Not much. Initially when you're working in the kitchen, you just need to get into the habit of collecting all the waste material in a small dabba close by, so you don't have to go up and down to the waste bin. So once you collect it in a dabba, then at the end of the day or whenever you have a few minutes, just go dump it in, and and right next to it will be your browns. You can add it. I think it shouldn't take more than a few minutes, maximum 10 5 to 10 minutes, 10 minutes, maximum 10 minutes. Yeah. 10 minutes max. Yeah. Yes. Thank you so much. Thank you. And also, Shubha ji, there was a question. Okay, will that stink? Will we get a smell or some stink like that in the family, in this house and all? Yeah. The reason people have stink in the bin is because if there's too much moisture, then the whole thing starts to compact. Okay. When it starts to compact, again you're generating ammonia. Okay. So tomorrow I'll explain the theory. So when I explain the theory, you will realize how important the air circulation is. Okay. So when you do the air circulation, and when you make sure you have the right amount of browns and greens, which is what we are trying to do with 2 handfuls for each handful of green, then you make sure the carbon nitrogen ratio is maintained and there is no compaction. And weekly once mixing is also something I'll talk about tomorrow. So all this together will make sure that the bin is not too moist. If it's too moist, it will compact. If your pieces, a lot of people want to mix, you put all your greens in the mixie. They'll take all the chopped thing, put it in the mixie and turn it up. So it's all mashed up. When it's all mashed up, there's no air and it'll start to stink. So that's not what we want. We want particles and we want air gaps in between, and we want the browns also there, and we want to mix it so that it develops a healthy mixture and the temperature of the bin rises. And that's when decomposition happens and there is no smell. Smell will come if there is too much moisture in your bin, which means you don't have enough browns,
or you've added too much water, or you've compacted the green so that there is no way for it to breathe. तो ये एक बड़ी इम्पोर्टेंट बात अभी शुभा जी बता रही हैं। मेरा प्रश्न ये था कि हम अगर कंपोस्ट घर में बना रहे हैं तो क्या बदबू आती है? तो वैसे उन्होंने बताया कि ये चीज वो कल ऐसे एक्सप्लेन करने वाली हैं, लेकिन ये कहते हैं एक आम गलती होती है कि अगर हमारा जो मिक्स हम बना रहे हैं, जो हमारे हरे हैं उनको हम ये समझ लें कि वो नाइट्रोजन प्रोवाइड कर रहे हैं, नाइट्रोजन और बाकी के मिनरल्स, और जो ब्राउन है वो कार्बन दे रही है। तो उन दोनों का जो प्रोपोर्शन है वो अगर सही है कि एक ग्रीन के साथ 2 ब्राउन का जो प्रोपोर्शन है उसको अगर हम सही ढंग से मेंटेन करते हैं तो ये झंझट नहीं आती है। दूसरा, जो ये घुमाना, एयर का घुमाना, ये बहुत जरूरी है। तीसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट उन्होंने बताया कि कई बार हम फटाफट हमारा कंपोस्ट बन जाए, इस चक्कर में हम क्या करते हैं कि जितनी सब्जियां हैं उसको उठा के हम मिक्सी चला देते हैं। तो अगर ऐसा करते हैं तो वो इकट्ठे हो जाती हैं। इकट्ठे हो जाने से क्या हो रहा है, उनके बीच में सर्कुलेशन नहीं हो पाती, हवा का मूवमेंट नहीं हो पाता, तब ये सारी चांसेस रहती है। और वो पानी फिर क्या करता है, अगर पानी ज्यादा है तो उसको दबाव पड़ती है और फिर ये सारी झंझट हो सकता है। तो इसीलिए हमें मिक्सी नहीं चलाना है, टुकड़े रहने देना है, ब्राउन्स को इस्तेमाल करना है। और बाकी की चीजों को एक्सप्लेन करने के लिए कल शुभा जी हमें बताएंगी कि कैसे एयर सर्कुलेशन और ये सारा है, और फिर इस तरह की झंझट भी हमें नहीं बनेगा। और ये भी हमने आज जान लिया कि ये समय में हमें कुछ ज्यादा इस काम के लिए बहुत ज्यादा रोज का समय हमें नहीं लगने वाला है, बहुत ही कम समय। बस एक तैयारी को, जैसे हम कोई नई चीज शुरू करते हैं तो तैयारी के लिए जो जितना समय लगता है बस उतना, कि डब्बा इस एक रख लिया, क्योंकि ब्राउन्स हमने पहले ही इकट्ठा करके रखा हुआ है। तो जैसे हमारे पास वो डब्बा में हमने एक रसोई में एक छोटा सा डब्बा रखा है जिसमें हम डालते जा रहे हैं, डालते जाते वक्त भी हम ये ध्यान रखें कि बड़े बड़े टुकड़े ना हो, छोटे डाल दें, करके मिक्सी नहीं चला रहे, छोटे छोटे टुकड़े करके डाल दिया। और फिर हम जैसे हमारा वो डब्बा तैयार हो गया, हमारा किचन का काम हो गया, हमने लिया और वो डब्बा डाला, उसके ऊपर ब्राउन, हर एक मुट्ठी के साथ 2 ब्राउन डाले, और हमारा उस दिन का, मतलब पत्तियां ना सूखी, हाँ वो सूखी, कल हम लोगों ने बताया था, वो फिर से मैं एक बार रिमाइंड करा देती हूँ। ब्राउन यानी सूखी पत्ती हो गई। उसके बाद उन्होंने दिखाया था कि हम इसमें जो हमारा कोकोपीट है वो ब्राउन्स में आता है। इसके अलावा हमारे लकड़ी का बुरादा है वो हमारे ब्राउन्स में आता है, या हमारे जो मूंगफली के जो छिलके हैं उनके मिक्सी चलाए हुई वो भी ब्राउन्स में आता है। जो कार्डबोर्ड आता है जिसके ऊपर कोई ग्लेजिंग नहीं है, जो हमारे जैसे गत्ते का जो डब्बा आता है हमारे अमेजन या उससे जब हम लाते हैं, वो भी ब्राउन में उसके छोटे छोटे टुकड़े करके हम डाल सकते हैं। इन सब अगर नहीं है तो हम अखबार भी छोटे छोटे टुकड़े करके डाल सकते हैं। कुछ ऐसे गत्ते जिनके ऊपर जैसे हम लोगों के चमकीले से जो आ रहे हैं उनके ऊपर प्लास्टिक का कवर होता है, उसको हटा के वो भी हम छोटे छोटे टुकड़े करके डाल सकते हैं। ये सभी ब्राउन के श्रेणी में आते हैं, इस ग्रुप में आते हैं। Yeah, just as a caution, if you're trying it out for the first time and you want to make sure you're successful, I would suggest you start with coco peat or sawdust, because you will get good results and you will get more comfortable. Dried leaves are very good, but they need to be crushed for them to develop more surface area to absorb the moisture. So if you can decompose your leaves to an extent where they're partially crushed, then they will act very well. But if you don't have that, and if you just have dried leaves straight off the street, it might take a while to decompose and absorb the moisture. So to be successful and to feel comfortable and positive about the whole thing, I would suggest try to go to a mill and pick up a bag of sawdust, or coco peat is available in most gardening stores and even Amazon. So you can get coco peat and sawdust and be very comfortable, so that the next time around when you use leaves, you know how to get around the moisture issue. वंडरफुल। शुभा जी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रही हैं कि जो हम ब्राउन्स की बात कर रहे हैं, तो जो पत्ते हम सूखे पत्ते हम देख रहे थे, तो सूखे पत्ते वैसे हमने देखा कि उन्होंने डाला है, बट सूखे पत्तों को अगर हम क्रश करके डालते हैं, मसल के डालते हैं, चूरा बना के डालते हैं, तो वो अच्छे से एब्जॉर्ब करते हैं। क्योंकि हम जब कलेक्ट करते हैं सूखे पत्ते तो वो तो बड़े बड़े भी हो सकते हैं, तो जितने हम उनको मसल देंगे उतना हम देखेंगे कि उनका एब्जॉर्बिंग जो शक्ति है वो बढ़ जाएगी। जो लोग जस्ट शुरुआत कर रहे हैं उनके लिए शुभा जी सजेस्ट कर रही हैं कि आप लकड़ी का जो मिल होता है
जहाँ पेंट वाला नहीं, प्लेन वाले जो लकड़ी, हाँ जहाँ लकड़ी का मेन लकड़ी का काम हो रहा है वहां से बुरादा ले सकते हैं। तो एक बड़ा सा बैग आपको सस्ते में मिल जाएगा, वो ले सकते हैं। दूसरा, आप अमेजन से भी मंगा सकते हैं, या जो फूलों का जो होता है दुकान, वहां पे भी आपको कोकोपीट मिल जाता है, तो वहां से आप कोकोपीट लेके आ सकते हैं। तो शुरुआत अगर आप सॉडस्ट यानी कि लकड़ी का बुरादा या कोकोपीट से करेंगे तो आपको बड़ा सक्सेसफुल होगा और आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि एक बार आप अच्छा कंपोस्ट बना लेंगे और रिजल्ट आपको अच्छा मिलेगा तो आपको प्रोत्साहन अच्छी से मिलेगी। तो शुरुआत के लिए आप ऐसे कर सकते हैं। बाकी पत्तों का एक बहुत अच्छा यूज हम ये इस तरह से करते हैं, क्योंकि जैसे कई जगह मुझे याद है जब मैं चंडीगढ़ में रहती थी तो वो झाड़ू लगा लगा के सब सूखे पत्ते को जमा करते थे, फिर उनको जला देते थे। तो वो कुछ अच्छा आइडिया नहीं है। उनको जलाने के बजाय अगर हम उसका कंपोस्ट बना लेते हैं तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। तो शुभा जी, आपको मैं डिम्पल जी से मिलाना चाहती हूँ। शी इज आवर कन्नड़ पर्सन, so I just asked that Shubha ji is also from Bangalore. Why don't you meet her? Sure. Yes. Namaste, Shubha ji. Hello, Dimple. Yeah, wonderful technique you shared with all of us. This is really a blessing for all of us, ma'am. Yeah, I have one question. Like, for example, this jackfruit leaf, they are very thick compared to other leaf. Even if they are dried, it remains thick only. We can't crush it. So in that, how to, Yeah, it will take some time for that leaf to decompose. So I think there are a lot of other leaves that we can start with, but jackfruit and other leaves that are thick and succulent, it will take a while for that moisture to disintegrate. So that I think you need to put it into a leaf compost bin and wait for a year or 6 months for it to decompose and then use it. Yeah. Okay. It has a lot of water inside, right? So it takes time for that water to come out. Nature has protected it so that water will stay inside. Yeah. Yeah. तो ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन डिम्पल जी ने पूछा कि ये जो हमारे फनस जो आता है ना, उसके पत्ते जो होते हैं, फनस या जैकफ्रूट जिसको हम कहते हैं, कटहल भी कहते हैं, तो उसके जो पत्ते हैं वो बड़े मोटे मोटे से होते हैं और वो जब सूख भी जाते हैं तो भी उनको क्रश नहीं किया जा सकता। तो डिम्पल जी ये पूछ रही थी कि क्या हम उनके पत्ते को डाल सकते हैं। तो इसके लिए शुभा जी ने बड़ा अच्छा बताया कि ऐसे जो पत्ते होते हैं जिनमें पानी खुद का ज्यादा रहता है, तो उनको हम सीधे तौर पर हम ब्राउन्स के तरह ना यूज करके इनको हम अलग से, जो हमारा लीफ कंपोस्ट का, आपने याद होगा हमने डे 1 में देखा था कैसे जाली वाला एक डब्बा था, उसमें हम सारे पत्तों को उनको जमा कर सकते हैं और उनको थोड़ा टाइम लगता है सूखने का। तो जब वो नेचुरल वो सूख जाए फिर हम उनको क्रश कर सके और डाल सके, तब हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। आज सुबह मुझे एक बहुत अच्छा आइडिया आ रहा था कि मेरे दिमाग में वो चल रहा था सारा, वो मेडिटेशन के बाद भी ये सब चल रहा था। शुभा जी, वी मेडिटेट इन द मॉर्निंग एंड वी आर गोइंग टू मेडिटेट नाउ आल्सो। इफ यू हैव सम टाइम यू कैन जस्ट 10 minutes वी विल बी मेडिटेटिंग, यू कैन, इफ यू कैन टेक आउट टाइम। तो मुझे एक बड़ा अच्छा आइडिया है। वो कोई बता रहे थे कि ये जो स्मेल आता है ये कुक्ड फूड की वजह से भी कई बार आता है, ड्यू टू द घी एंड बटर इन दैट। तो मुझे एकदम ये वो आया कि हम जैसे द वे शुभा जी ने डब्बा दिखाया, तो कैन वी कीप 2 डब्बास। एक डब्बे में हम सारे फल सब्जियों के छिलके वगैरह डालते जाए, दूसरे में हम एक ऐसा एक स्टेनर टाइप का नीचे रख के अगर डालें, क्योंकि सब्जियों में वो रस रहता है, वो करी वगैरह वो रहता है, वो नीचे निकल जाए और बाकी का जो सूखा वाला पार्ट है फिर उसको अगर हम डालें तो शायद ये बदबू वाला प्रॉब्लम हम शायद थोड़ा ठीक कर सकते हैं। यस, यू वर टेलिंग समथिंग, वी कुडंट हियर यू। I don't know what the cooked food is, but if it's okay, you can just dry it in the sun on a plate, and then one day dry it, and the next day you can add it to your compost bin. You know, meanwhile, if the birds or squirrels come and eat it, then that's fine. Yeah, that also is a good idea. ये भी अच्छी बात है, right? And you know, yesterday, today only, and before also, I use watermelon. वो घर में हमारा भी जैसे है ना वो तरबूज और ये चलता है। अब मेरे लिए यहाँ ये फायदा हो गया है कि वो ज्यादा, जैसे मुझे पता लग रहा था कि ये सौगी से हो जाते हैं, ज्यादा मॉइस्चर रखते हैं, तो हमारे पास में थोड़े पास में गौशाला है, तो जब भी ऐसे टाइप के फ्रूट्स होते हैं तो उनके जो छिलके होते हैं, मैं जब उनको देखती हूँ तो वो बहुत खुश हो जाते हैं। जो गाय होती है वो बड़ी खुश हो जाती है, मजे से चबा के खा जाती है, तो वो भी मुझे बड़ी खुशी देती है।
तो ये सारा हम यूज कर सकते हैं। अच्छा शुभा जी, आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस यू टू श्वेत पद्मा जी टुडे। तो श्वेत पद्मा जी is from Orissa, and Orissa from yesterday they are celebrating a function called Rajo, Okay. and that is the day where it is celebrated as Mother Earth's menstruation cycle is starting. So it is celebrated like that, and as our word is the way you said, back to soil. It is a celebration of soil, the Mother Earth. So the celebration is about Mother Earth. So Shwet Padma ji, please tell about Rajo ji. Rajo. Very interesting. Yeah. नमस्ते नमस्ते श्वेत पद्मा जी। नमस्ते पितामह पत्री जी और सारे आश्रम मास्टर्स को नमन करते हुए मैं श्वेत पद्मा ओडिशा से आप सभी को पहले शुभकामना देती हूँ। आज रजो के त्योहार का सेकंड डे है और मैं आपको थोड़ा रजो के बारे में, हमारे यहाँ कैसे सेलिब्रेट किया जाता है और उसको हम कैसे, मतलब मैं खुद ही ओडिया हूँ और उसको कैसे मैं मनाती हूँ वो भी मैं बताऊंगी। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो यह मदर अर्थ के ऊपर ही है क्योंकि रजो एक ओडिया नेम है और वो मेंस्ट्रुएशन साइकिल का ओडिया नेम रजो है और ये फेस्टिवल पर्व, इस तरह का हम इसे रज पर्व बोलते हैं। और यह एक इस तरह का मतलब एक त्योहार है जो कि सिर्फ खुशियां, सिर्फ प्यार, स्नेह और मतलब हर जगह एक सेलिब्रेशन होता है। यहाँ उड़ीसा में गांव-गांव से लेकर शहर तक हर एक कंपटीशन, फन, मतलब हर एक घर-घर में मिठाइयाँ, घर-घर में पीठा हम बोलते हैं यहाँ और वो स्वीट्स उस टाइप का चावल में बनाते हैं और पोड़ पीठा उसको हम बोलते हैं जो कि यहाँ फेमस है और एक रज पान बोलते हैं। तो ये तो स्पेशल है, रजपान नहीं होगा तो रज फेस्टिवल उसका कोई मतलब ऐसे मिठास ही नहीं है, इस टाइप का है। तो मैं बताती हूँ कि हमारा रज पर्व में क्या होता है यहाँ पे। तो यहाँ हमारा मेन की 5 डेज मनाया जाता है। रज 3 डेज का पर्व है, उसके पहले दिन और उसके लास्ट दिन को भी साथ में मनाया जाता है। रज का पहले दिन होता है सजबाज। सजबाज मतलब जितना सारा सजावट है, मतलब जितना सारा तैयारी है वो सब हम करते हैं, शुरू कर लेते हैं रज के पहले दिन से। जैसे कोई खाने का चीज हो, जैसे हमें वहाँ के इस तरह का होता है ना, हम धरती माँ के साथ इतना जुड़ जाते हैं कि हम एक पत्ते भी नहीं तोड़ते हैं उस रज के त्योहार में और कुछ भी मतलब कुछ तकलीफ नहीं देते हैं। तो पहले दिन से हम जो भी चाहिए, जिसका जो भी जरूरत है, पत्ते तोड़ना या कुछ भी, वो पहले दिन से सब रख लेते हैं। कोई खाने के लिए भी हम काटते नहीं है, छुरा नहीं लगाते हैं, वो भी पहले दिन से सब कट करके रख देते हैं। और जो बनाते हैं चीजें, डिशेस बनाते हैं, उसका भी पहले दिन से सब तैयार करके रखते हैं। तो इस तरह का। और हम लड़कियां बहुत पसंद है जो श्रृंगार करते हैं और उनके सजावट है, मतलब गजरा डालते हैं, वो सारा सब मतलब पहनते हैं उस दिन और उसके लिए भी इंतजाम होता है, मेहंदी लगाते हैं और इस टाइप का हम सजावट करते हैं, इसलिए उससे रज सजवाज बोलते हैं। और सेकेंड डे है हमारा जो कि रजो का फर्स्ट डे है, वो पृथ्वी माँ का मेंस्ट्रुएशन साइकिल है। तो इसलिए हम सब, धरती माँ का एक एक रूप है, इसलिए हम सबका वही दिन होता है। मतलब जब भी जितने सारे देवियां हैं वो सब रजोवती होते हैं, मतलब सबको पूजा नहीं किया जाता है और सबको ही रहते हैं उस टाइप का। मतलब हम इस तरह का मतलब जो भी पूजा करते हैं, हम तो मेडिटेशन में आ गए, पर जो पूजा करते हैं वो पूजा भी बंद किया जाता है उस 3 दिन में। तो इस टाइप का होता है। तो पहले दिन से सिर्फ सुबह से रात तक मतलब सब कुछ खेलते हैं और
बहुत एक इस तरह का चीज है कि हम नेचर के साथ जुड़ते हैं उस टाइम। मतलब कोई बाहर घर में रहा होगा पूरा साल भर, तो भी वो कहीं ना कहीं एक नेचर की जगह पे जाता ही है, प्रकृति के साथ ही रहता है। और वहाँ जो पेड़ पेड़ होता है ना, उसमें हम झूला लगाते हैं, कोई पट्टी में कोई रस्सी में, सब झूला लगाकर वहाँ खेलते हैं सब सारे लड़कियां। और उस टाइप का होता है। और जो हमारा यहाँ उड़ीसा एक कृषि प्रधान देश है, मतलब वहाँ यहाँ बहुत सारे फार्मर्स रहते हैं। और फार्मर्स का भी हम खुदाई कुछ भी नहीं करते इस 3 दिन में। और ये 3 दिन में पूरा धरती माँ को कंप्लीट रेस्ट दिया जाता है। हम एक मतलब कुछ भी तकलीफ नहीं देते हैं इस 3 दिन के टाइम में। और इस टाइप का रहता है। सेकेंड डे जो है वो होता है रज संक्रांति, मिथुन संक्रांति, जो आज का दिन है। रज संक्रांति में पहली बार मौसमी आता है। मौसमी मतलब बारिश आता है। हमको पता है कि जैसे बारिश का एक बूंद भी जमीन में पड़ता है तो उसका जो सुगंध है वो सब जगह फैल जाता है। तो हम उसी को स्पेशली मनाते हैं उस दिन। मतलब उस दिन इसलिए सेलिब्रेट करते हैं कि रजों के लिए, मतलब वो मौसमी सेलिब्रेशन किया जाता है कि यहाँ पे कितनी जरूरत है पानी का, कितनी जरूरत है। मिट्टी में जो एक बूंद पानी पड़ता है ना, हमें पता नहीं कितने जगह पे इस तरह का है कि कोई बारिश नहीं होता है। यहाँ तो अभी तो बहुत सारा मतलब टेक्निक में पानी को रखते हैं, सब कुछ करते हैं। पर उस टाइम जो फार्मर्स होते हैं वो बारिश के ऊपर निर्भर करते थे। मतलब उस बारिश होते, फिर उसके बाद ही उनका फसल हो, कुछ भी हो, पेड़ पौधे लगाना हो, तब से शुरू होता है उस दिन से। तो इसको भी इम्पोर्टेंस देते हैं हम रज संक्रांति में। और थर्ड डे है भूमिदाह। भूमिदाह और इसको बोलते हैं बासी रज। बासी मतलब तीसरा दिन, जो चौथा दिन है, बासी रज बोलते हैं। तो भूमिदाह का मतलब है इस दिन हम भूमि में पेड़ भी नहीं रखते हैं। मतलब पेड़ भी, इतना भूमि को रेस्पेक्ट दिया जाता है। अगर पेड़ भी रखते हैं ना, जो केला के जो पत्ता है उसमें हम अभी तो चप्पल आ गया है, वहाँ केले के पत्ते के ऊपर ही हम पेड़ डालते हैं। मतलब जमीन में पेड़ भी नहीं रखते हैं कोई भी। तो इस टाइप का वो रजस्वला होता है। ये बोलते हैं कि ये रजोवती है और पूरा पृथ्वी रजस्वला होता है। इसलिए हम पेड़ नहीं रखते हैं, हम रेस्पेक्ट करते हैं, भूमि पूजा करते हैं। तो थर्ड डे के बाद फोर्थ डे होता है हमारा जो बसुमती स्नान है। जैसे हम पीरियड्स के लास्ट दिन में हम स्नान करते हैं, उस टाइप का बसुमती स्नान में हम सबका स्नान होता है। मतलब हर कोई लड़कियां पूरा धोकर स्नान करता है, भूमि को हल्दी लगाता है। हल्दी एंटीसेप्टिक होता है ना, तो हल्दी कुमकुम लगाते हैं और चंदन लगाते हैं। और उसके साथ साथ भूमि को भी पूजा करते हैं, वो भी हल्दी और कुमकुम लगाकर पूजा करते हैं। तो इस तरह का हम एक पृथ्वी में एक सेलिब्रेशन मनाते हैं। पूरा ओडिया, यहाँ घर घर में यह रजो पर्व फेस्टिवल हर एक ओडिया के पास है ही। और मैं खुद का बताती हूँ, 3 दिन 4 दिन झूला लगाते हैं और मैं 15 दिन के पहले से झूला लगाती हूँ घर में। और 1 मंथ तक मैं वो झूला रखती हूँ घर पे, और उसमें मतलब मेरा पूरा 1 महीना के लिए मैं पूरा उसको सेलिब्रेशन करती थी। और रज पर्व 1 साल में कब आएगा उसके लिए हम इंतजार करके रहते हैं कि कब आएगा, हम सेलिब्रेट करेंगे इसको। और इस टाइप का होता है। और एक चीज जो नए जो मई के घर में जाते हैं तो ऐसे खाली हाथ नहीं छोड़ते हैं। सब फल, फ्रूट्स और क्या पीठा वो सब बनाकर और नया वस्त्र नया साड़ी वो सब देकर ही छोड़ते हैं माँ उनके ससुराल के घर में। तो उस टाइप का रहता है हमारा यहाँ उड़िया के जगह में, इस टाइप का हमारा सेलिब्रेशन होता है। और जब हम ध्यान से जुड़े हैं, जब हम ध्यान से जुड़ गए हैं, तब
तरह तरह का चीज हमें समझ में आ गया कि ये जो 3 दिन होता है, जैसे हमें पता है कि एक नारी कितने रूप धारण करता है, कभी बेटी के रूप में, कभी माँ के रूप में आता है, फिर बहू के रूप में कार्य करता है, सास के रूप में कार्य करता है, और उसका एक इम्पोर्टेंस होता है। और उसका वो खिलना जो होता है ना, वो जो मेंस्ट्रुएशन होता है, उसकी वजह से उसका जो सौंदर्य होता है, उसके पीछे वही रीजन है कि उसकी वजह से ही वो तरह तरह लड़कियां बोलते हैं कि ये क्यों हो रहा है हमें, तो किसी किसी को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं अपने फेमिनिटी गुण को, जो अपने अंदर जो दया की, जो करुणा की, जो प्रेम का गुण है, जो सुंदरता है, वो इसकी वजह से ही आता है। और ये 3 डेज का इतनी इम्पोर्टेंस है, उसको जगह जगह इतने खुले तरह हम प्रेस करते हैं कि हम इनडायरेक्टली हम फेमिनाइन क्वालिटी को ही सबके अंदर डेवलप करते हैं। वो सिर्फ हमारे अंदर नहीं, वो हर एक के अंदर है। जिसको अगर एक डेवलप करेगा। और एक चीज है कि जब ध्यान से जुड़े हैं ना, तो ये जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल होता है, उसी टाइम हम ज्यादा ध्यान में गहरे जाते हैं, और ज्यादा जितना ध्यान में बैठते हैं ना, उतना और भी वाइब्रेशन और भी बहुत सारे चीजें अनुभव होने लगते हैं। तो इस टाइप का मतलब मेंस्ट्रुएशन के लिए पहले तो इस तरह का बोला जा रहा था कि नहीं, मंदिर में मत जाओ या पूजा घर में मत जाओ, इस टाइप का हम बोलते थे पहले। पर हमें धीरे धीरे पता चला कि नहीं, मंदिर में क्यों नहीं जाते हैं, हर एक लड़की एक देवी के रूप में होता है उस टाइम, और उसी को पूजा करते हैं, मतलब उसी को श्रृंगार करते हैं, उसी को नहाते हैं, उसी को पैर में लगाते हैं। तो मतलब उसको एक देवी के रूप में माना जाता है। जब तो ये रजो का त्योहार जो है, उसका बहुत रिलेशन है फेमिनिटी और नेचर के साथ जुड़ने का, क्योंकि हम जैसे पत्ते को, फूल को कुछ भी नहीं तोड़ते हैं उस टाइम ना, और सबको हम इनडायरेक्टली हम ये एक स्पेस देते हैं कि उसको अपने क्वालिटी को एक्सप्रेस करने की, उसको अपने जो भी चीज है, जैसे एक चीज हम किसी चीज को रोकते हैं और एक चीज खुद डेवलप होता है, तो वो डेवलप की क्वालिटी को हम उसके थ्रू स्प्रेड करते हैं। तो इस टाइप का हमारा रजो फेस्टिवल जो है, वो मतलब एक अंदर से इतना खुशी लगता है कि हाँ, ये चीज चाहिए धरती माँ के डेवलपमेंट के लिए, धरती माँ को धरती माँ से जुड़ने के लिए ये एक अच्छा त्योहार है और एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, जो कि उड़ीसा में पहले शुरुआत हुआ है। और उस टाइम जो कृषक होते हैं ना, फार्मर्स होते हैं, उनको तो कुछ काम ही नहीं रहता है, वो साल भर काम करते रहते हैं, और उस टाइम वो अपने हिसाब से वो खेलते भी है। उनके मतलब जो पुरुष लोग हैं, वो कबड्डी हो या चेस हो, कोई तरह तरह शंख का, गोटीपुर डांस यात्रा, वो सब गांव गांव में मतलब वो तैयारी करते हैं। और हर एक अभी भी हर एक टीवी चैनल में आएगा, ओडिया का पर्व है तो रज का मतलब तरह तरह का एक कंपटीशन लेकर, प्रोग्राम लेकर, सॉन्ग्स और नृत्य और इस टाइप का लेकर, मतलब एक फन, एक सेलिब्रेशन। तो यही है ओडिशा का एक मतलब सबसे, मैं बोलती हूँ कि ये सबसे अच्छा पर्व है हमारा। बिल्कुल, हम लोगों को श्वेत पद्मा जी के फेस से ही पता लग रहा है कि कितनी खुशी है उनके चेहरे पर। और बिल्कुल, और श्वेत पद्मा जी जैसे अभी पूरे मदर अर्थ की तरह ही लग रही है कि जब उनको पूरा सेलिब्रेशन है, और कितना सुंदर जैसे वो बता रही हैं कि हम पूरा जैसे रजस्वला है, रजस्वला बेसिकली ये वर्ड है, ये संस्कृत का शब्द है। रज मीन्स खून और रजस्वला मीन्स पीरियड ब्लड। तो ये जब है, और मदर अर्थ जब है, जैसे हमें पता है रजस्वला मतलब रेडी फॉर फर्टिलिटी, तो मदर अर्थ जो है वो तैयार हो रही है। कितना सुंदर समय है, देखिए कि फर्स्ट मॉनसून का ड्रॉप गिर रहा है, उसको भी साथ में सेलिब्रेट किया जा रहा है।
धान की बुवाई होगी, तो माँ अर्थ को खोद भी नहीं रहे, वही जो आगे हमें साल भर खिलाएंगी, अभी उसको ना काटना है ना कुछ, पूरा सम्मान उस पर पाँव भी नहीं रखना है। तो चलिए आज मदर अर्थ से जुड़कर हम 10 मिनट उनके साथ मेडिटेशन करते हैं, उसके बाद हम कोई शेयरिंग है तो हम सुनेंगे। तो चलिए हम लोग, बहुत सिंपल प्रोसेस है। हम जो नए जो हैं वो जानते हैं कि हमें फिंगर्स को क्रॉस करना है, पैरों को क्रॉस करना है, आंखें बंद करनी है। चश्मा अगर आपने पहना है तो चश्मा उतार दीजिए, क्योंकि अभी हम अपने गहरे अपने अंदर जाएंगे और आती जाती सांस के साथ हम जुड़ जाएंगे। बहुत ही आसान है। और आज हम ये ध्यान, ये मेडिटेशन हमारी माँ वसुंधरा के साथ करेंगे। वो माँ वसुंधरा जहाँ पे सिर्फ ओडिशा नहीं, पूरे पूरे अर्थ में, पूरी पृथ्वी माँ में आज जैसे रजस्वला रज जैसे सेलिब्रेट हो रहा हो, पूरी धरती माँ के हर कण में, हर जगह में उनके साथ जुड़ते हुए, बिल्कुल उनकी धड़कन और हमारी धड़कन एक होते हुए बस आती जाती सांस के साथ रहेंगे। हम महसूस कर सकते हैं कि जैसे धरती माँ अगर एक स्त्री रूप ले, तो एक लड़की की तरह वो झूले अगर झूल रही है, तो जैसे एक बड़ी प्यार से वो बताती है कि हमारे जीवन में भी उतार और चढ़ाव आते हैं। हर उतार हर चढ़ाव में अगर हम आनंद ले सके तो हमारे जीवन कितना सुंदर हो जाएगा। हर कुछ सेलिब्रेशन। ध्यान हम अपनी सांसों के साथ धरती माँ से जुड़ते हुए हर सांस के साथ हम जुड़ते जा रहे हैं। और कुछ यूं भी महसूस हो रहा है कि जैसे हम सभी ने आपस में एक दूसरे का हाथ पकड़ा है और हम गोल गोल घूमकर खेल रहे हैं, खूब मजे कर रहे हैं। किलकारियां, खुशी। कितना सुंदर है मिट्टी से जुड़ना, अपनी वसुंधरा माँ से जुड़ना। ध्यान सिर्फ हम अपनी आती और जाती सांसों के साथ रखेंगे। जैसे जैसे हम महसूस करते जा रहे हैं धरती माँ के साथ वन हार्ट वन बीट, और गहराई से महसूस करते हैं हम जैसे अपने आप से हम और ज्यादा कनेक्टेड होते जा रहे हैं, और धरती माँ से भी और ज्यादा कनेक्टेड होते जा रहे हैं। जैसा भी हमारा सांस चल रहा है उसको ऑब्जर्व करते हैं, महसूस करते हैं कि हमारी धरती माँ, हमारी माँ वसुंधरा भी किस तरह से उनकी सांसें चल रही हैं। उनका दिल और हमारा दिल एक साथ धड़क रहा है। एक सम्मान, एक गहरा प्रेम,
एक आत्मीयता, इस माँ वसुंधरा को आप माँ की तरह देखें, बहन की तरह देखें, बेटी की तरह देखें, नानी, दादी, चाची, बुआ, छोटी सी बेटी, जिस रूप में वो दिखती है, हर रूप कितना प्यारा है। ध्यान आती जाती सांस के साथ एक रखेंगे। कितना ही सुंदर लग रहा है हमें। बिल्कुल जैसे हम वसुंधरा माँ का हाथ पकड़ के उनके साथ ही, जैसे हम दीदी आप म्यूट हो गए, अनम्यूट कीजिए। माँ की सुंदर छवि के साथ कनेक्टेड रहते हुए वापस आना शुरू करते हैं। लास्ट 10 seconds. 5, 4, 3, 2, 1, 0। अपनी दोनों हाथों की हथेलियों को हम अपनी आंखों पर रखते हैं। अपना समय लेते हुए धीरे 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 हथेलियों को हटाते हुए, बिल्कुल अपना समय लेते हुए धीरे 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 आंखें खोलेंगे। वंडरफुल, मजा आ गया। श्वेत पद्मा जी बहुत मजा आ रहा था, आपने बहुत अच्छा हमें बताया। इट वाज ब्यूटीफुल। रजू की सेलिब्रेशन के कारण मुझे लगता है इतनी ज्यादा एनर्जी आई थी, बहुत अच्छी थी। यस, Thank you so much. आवाज जी जी यस कि व्हेन यू मेक कंपोस्ट तो टी लीव्स शायद उसमें उसकी अलग से बनानी चाहिए कंपोस्ट, उसकी वेजिटेबल्स के साथ नहीं बनानी चाहिए, ऐसा कुछ यूट्यूब्स में कुछ एक्सपर्ट्स की ये राय थी। तो मैं इसमें कंफर्मेशन चाह रही थी कि ये टी लीव्स का अलग बनाया जाए, इसी में टी लीव्स को सुखा के हम बना सकते हैं ऐसा। क्योंकि कल जो मुझे पता चला वो ये है कि टी लीव्स भी इसमें डाल सकते हैं, उसको दूध को धो के, आई मीन दूध का जो उसको पूरा अच्छी तरह दूध का पोर्शन निकाल के फिर। तो यहाँ थोड़ा सा मैं कंफर्मेशन चाह रही थी कि वो उसमें डाल सकते हैं क्या, क्योंकि कल मैंने दोबारा से कंपोस्ट फिर शुरू कर दी। एक मेरा पूरा बिन भर गया है जिसमें लगभग 4-5 महीने हो गए, लेकिन कल मैंने ये सारी चीजें दोबारा से कार्डबोर्ड और ये सब डाल के बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से, कल जैसे ही ये सेशन खत्म हुआ उसके बाद मैंने दोबारा शुरू कर दिया। आई कैन शो यू, मैं आपको दिखा भी सकती हूँ किस तरीके से है। तो वो मैंने अर्थन पॉट में किया है, जो हम लोगों के जो मटके होते हैं उस वो रखा हुआ था, उसमें ऑलरेडी लीव्स जो थी वो कंपोस्ट बन गई थी, आई मीन पूरी उसी की लेयर बिछा के और फिर मैंने शुरू किया, क्योंकि उसमें ब्राउन पोर्शन, लीव्स का पोर्शन जैसे बताया गया सिस्टमेटिकली वो बेड तैयार करके, तो वो मैंने कल दोबारा से शुरू किया। आई वाज सो लेकिन टी लीव्स के बारे में थोड़ा सा मैं कंफर्मेशन चाह रही थी कि उसको सुखा के डाला जाए या गीला भी, ये थोड़ा सा गीला में कल जैसे शुभा जी से और राव साहब से बात हो रही थी, उन्होंने ये बताया कि आप ये कॉफी का भी जो एक्सट्रैक्ट निकाल लेते हैं, जो फिल्टर कॉफी लेते हैं, तो वो कॉफी का जो बचता है या चाय के जो बैग्स हैं या टी लीव्स हैं,
उनका पानी आप अच्छे से छान लें। हाँ, तो एकदम जितना पानी पूरा दबा के निचोड़ लें, और चाहे तो थोड़ा फैला के हल्का सूखा कर लें, क्योंकि ये बात हमें सबको क्लियर हो रही है। जैसे आज शुभा जी ने सब्जियों मतलब जो हमारा कुक्ड फूड है उसके बारे में भी यूं बताया कि अगर आपको, जैसे हम लोग, ये बात हम लोग सोच रहे थे, हम लोग सुबह रोज मेडिटेशन करते हैं तो हमारे और भी हमारे काफी सारे गाइडेंस आता है, तो ये कुक्ड फूड की वजह से बदबू होता है। अच्छा, अगर हम ऐसा करें कि सब्जियों को अलग रखें, कुक्ड फूड को अलग रखें, तो एक और अच्छी आइडिया उन्होंने दिया शुभा जी ने कि कुक्ड फूड को आप, एक तो उसका जो रस होता है, जो करी होता है, वो तो एकदम बिल्कुल नहीं आना चाहिए, और उसको भले आप एक प्लेट में डाल के सुखा के बाहर रख दें, तो अगर कोई चिड़िया या स्क्विरल खाना चाहे खा ले, जितना बाकी बचे उसको आप डाल लें। तो मैंने कहा ये भी अच्छा आइडिया है, ये भी कर सकते हैं। मैंने लेयर्स किया है और ये मेरा पैकेट बहुत अच्छा तैयार हो गया है, मतलब इसमें सारी चीजें मैं डाल रही हूँ। और देखिए ये कंपोस्ट से ही मैंने ये पूरा, ये देखिए पेड़ लगा। अरे वाह, का पेड़ बहुत फल रहा है, ऐसा लग रहा है ना हाथ बढ़ा के नींबू तोड़ ले जरा, ऐसा मन नहीं कर रहा। यस, और लेमन्स के 2 पेड़। यस करती, जो नीचे गिरे हुए हैं मैं वही लेती हूँ, कभी मैंने कभी नहीं, नेवर। जब ये नीचे गिरा देता है तभी हम लोग करते हैं। ये हमें और मेरे हस्बैंड का है कि इसको तोड़ना नहीं है, जो नीचे गिरेगा वो यूज करेंगे। वंडरफुल, थैंक यू सो मच। हमारा भी दिल गार्डन हो गया। थैंक यू थैंक यू थैंक यू एवरीवन, एंड थैंक यू मदर अर्थ आज अर्थ आवर में हम सब के लिए। थैंक यू श्वेत पद्मा जी।